Hello everyone. Good morning to each one of you today. Hi, I am Roma Jariwala, the principal of MCU International Preschool. Have come up again to give you some tips for your child after the post-COVID, the reopening of the schools, preschools, and the problems you are facing by as a parent, as a teacher, as a mother or as a parents, right? So today I am going to give you some tips for your child, for you as well as so you can handle your child in a very good manner, and also you can nurture your child and develop in a proper and a better way. So let's start with the first topic. So the first topic of today's our agenda is the words of affirmations. Might be everyone must be knowing the words of affirmations. Affirmations are like such kind of things that you can repeat as on a daily basis in such a way that kids also repeat. Like, I'll give you one example. I believe in myself. So as a parent, you will say the same sentence, your child will also repeat. So one of my parent has already started doing. Thank you, Alice ma'am, for starting in a better way to nurture your child. You can also say some of the things like I am amazing. Even you can repeat I am amazing, I believe in myself, so I am calm. The affirmation which you will repeat on daily basis will show better development in your child after some months. I definitely say that I can give you 1 month of a trial to your child, so you can have a proper, and even you can note down the points which I'll be giving you in this live session. So the first affirmation I've already told you, I believe in myself, right? I am amazing. I am calm. You can say I am calm. I am healthy. I am a good friend. So in I am a good friend, you can say also like that, like I am a good friend of my mother, my father, my friends of the society, my friends of my school, like that. I can do anything, right? I am brave. Yes, you can say I am brave. So this 6 affirmations you can repeat to your child whenever you get free in the morning. Whenever you make your child wake up in the morning, at that time you can just have this 6 affirmations daily. So in this way you will be feeling from your inner soul, you will be feeling very healthy, as well as your child will be also feeling very healthy. So next topic, we will go on the post-COVID school and kids. So this is the very important topic of today's agenda, as well as because after the opening of the school, I hope you will be knowing that due to COVID we were not able to open the school. So it's been a vast gapping of 1.5 to 2 years, right? सो 2 years का गैप ऑलरेडी हो चुका है. उसके बाद स्कूल का स्टार्टअप हुआ है. इवन द हायर सेकेंडरी, द सेकेंडरी स्कूल, द प्री स्कूल्स, एंड द मेन डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड इज़ बीइंग इन द प्री स्कूल, राइट? जो प्री स्कूल में जो बच्चों का डेवलपमेंट फिजिकली, इमोशनली विद देयर पीयर वंस, वो लोग का होता है, वो डेवलपमेंट आपको बड़ी स्कूल में नहीं दिखाई देता है. बिकॉज द 5 years, द 0 to 5 years का जो डेवलपमेंट बच्चों में होता है वो ऑलरेडी 5 years से पहले हो जाता है. उसके बाद दे शिफ्ट टू फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड फ्रॉम 6th year. 6 साल के वो लोग हो जाते हैं, 6 साल के उसके बाद वो फर्स्ट में चले जाते हैं. दे आर वेरी गुड, एबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, दे आर एबल टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल इन मैनी वेज. सो वो एज ऐसी है कि 0 to 5 years में आपका डेवलपमेंट बच्चों का बहुत अच्छे से हो जाता है. सो वो स्कूल चालू हो जाने के बाद 2 साल का गैपिंग हो जाता है. तो इट इज़ एन वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टूवर्ड्स योर किड. लाइक पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबल रोल बहुत बढ़ गया है. उसके बाद टीचर्स का भी बढ़ गया है. द एनवायरनमेंट विच यू आर गिविंग टू योर किड्स एट योर होम ऑल्सो, बिकॉज 2 साल में बच्चों घर पे ही रहे हैं, ऑनलाइन में भी घर पे रहे थे, और अभी
आई गेस फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स स्कूल हैज़ बीन स्टार्टेड एंड अभी एडमिशन्स भी चालू हो गए सारे स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में, बिकॉज CBSE हैज़ स्टार्टेड द स्कूल इन अप्रैल एज वेल एज वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड द स्कूल इन अप्रैल, राइट. तो बच्चों का डेवलपमेंट वो लोग का बहुत ही ज़रूरी था. तो अच्छा हुआ पोस्ट कोविड में आपको वही फॉलो करना रहेगा कि आप बच्चों को अच्छे से अच्छे लेवल तक बाहर का एक्सप्लोजर दो. सो इट विल बी हेल्पिंग देयर टू बिल्ड देयर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर देम सेल्फ, राइट. और जो लोग वो घर पे सीखते हैं रादर देन वो अच्छे से वो स्कूल में सीखते हैं, राइट. सो इट इज़ मोर conveniencing to you that you make your kid enroll in any schools आफ्टर 2.5 एज या 2 years के एज में वो लोग प्ले ग्रुप में आप रख सकते हो. तो उन लोग का जो डेवलपमेंट होता है 2 years से लेके 5 साल तक का, वो बहुत ही अच्छा टाइम स्पैन है वो लोग के लिए. अगर सीखना है वो लोग को नई नई एक्टिविटीज़ से लेके कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, कोई बच्चे में कॉन्फिडेंस कम है, तो the school be having a proper routine for your child. So according to the routine they'll be having in discipline, they'll be behaving good manners, they'll be learning more etiquettes of your home as well as the school, right. So these are the things that you have to make your development in your child, right. So the third topic will be shifting toward the quality time of your to your kids you are giving as a parent, right. सो पहली बात मैं आपको वो बोलना चाहती हूँ कि हैव अ डेली कनेक्शन विथ योर चाइल्ड. एक कनेक्टिंग टाइम डिसाइड कर लो, सुबह या दोपहर को या इवनिंग में. वो कनेक्शन का टाइम स्पेन ओनली 10 to 15 मिनट्स का होना चाहिए. इफ़ योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू द स्कूल तो आप 10 से 15 मिनट उसका पूरी बात सुन लो, उसको टाइम दे दो अच्छे से. तो एक कनेक्शन आपके बीच में जो बनेगा ना वो लाइफ टाइम लॉन्ग रहेगा, राइट. तो एक कनेक्शन होना चाहिए, राइट. एंड प्रॉपर यू शुड क्रिएट अ प्रॉपर रिचुअल. एक रिचुअल बना लो मॉर्निंग में के, और प्लानिंग और अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग यू कैन डू लाइक दैट कि हर रोज़ मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे ये करना है मेरे बच्चों के साथ. एक प्लानिंग होगा देन यू कैन गो प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे, राइट. रेनफोर्समेंट पॉजिटिव एक्टिविटीज़ और पॉजिटिव बिहेवियर आप भी बना सकते हो. एक प्रॉपर बच्चों में एक स्ट्रेंथ बना दो कि मुझे पॉजिटिव बिहेवियर उनके साथ करना ही है. अगर वो बच्चा बहुत ही छोटा है, अगर वो मुझे टेंड्रम्स दे रहा है तो वो टेंड्रम्स को हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव बिहेवियर में ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट. सो यू शुड ऑलवेज स्पीक इन अ प्रॉपर मैनर कि बच्चों आप रोल मॉडल हो आपके बच्चों का, राइट. तो अगर बच्चों के आप रोल मॉडल हो, एज यू विल रिएक्ट टू देयर टेंड्रम्स इन द सेम वे व्हेन यू आर एंग्री, योर चिल्ड्रन ऑल्सो विल बी रिएक्टिंग इन अ सेम मैनर. तो अगर आप बच्चे का रोल मॉडल आपको कैसे बिहेव करना चाहिए वो टाइम के पीरियड में, तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली. मेक अ हैबिट टू ईट टुगेदर, पार्टी टुगेदर, हैव अ फैमिली टाइम. मूवीज़ देखने जा सकते हो आप बच्चों के साथ. वेन एवर पॉसिबल यू कैन हैव अ कॉफ़ी ऑल्सो. अगर आप साथ में बैठ के खाना खा सकते हो तो वो भी ज़्यादा बेटर है. एनीथिंग यू कैन हैव. उसके बाद आता है एक्टिविटीज़. अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो. लाइक कोई अगर होमवर्क आया हो तो होमवर्क साथ में बैठ के कर लो बच्चों के साथ. अगर उसको आता है तो भी मोटिवेट करो. Say good words to them that I really appreciate your work, that you have completed before the time. You can say like very good, well done, well job, good job. You can say excellent. These are the some words that translate the behavior in your child. तो वो लोग पॉजिटिव वे में लेंगे और उनको इतना अच्छा लगेगा कि वाओ आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एज माई मदर इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटिंग, माई फादर इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटिंग, एज वेल एज स्कूल भी वो काम कर सकती है. एंड so these are the some points you can see in quality time. You can give your child a basic quality time so that you can mold your child in a proper and a better way. Okay, so हमारा थर्ड टॉपिक क्वालिटी टाइम का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ. नाउ द फोर्थ टॉपिक इज़ द सर्विस फ्रॉम द स्कूल, which
ever school you keep, you should see such kind of services which they are giving to your child in a better way. First and foremost, the thing you can see in which board you are selecting. अकॉर्डिंग टू यू कैन सी द मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ ऑल्सो वो लोग करवा रहे हैं या कौन सी एक्टिविटीज़ करवा रही है. यू कैन सी देयर एकेडमिक्स पार्ट. एकेडमिक में वो लोग को कितना प्रेशर आ रहा है, उन लोग का सिलेबस कितना है, हाउ मच यू हैव टू बी एनरोल्ड इन योर चाइल्ड्स एकेडमिक, वो आप देख सकते हो. बच्चा वर्कशीट से भी कर रहा है या फिर अलग से नोटबुक्स है, आप ट्यूशन्स में रख रहे हो, कैसे है वो लोग के एज के हिसाब से वो लोग को कितना प्रेशर हो रहा है. यू कैन सी लाइक दैट. द फील्ड ट्रिप्स दे आर टेकिंग यू अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक्स. एज आई कैन टॉक अबाउट फॉर माई स्कूल MCU International Preschool, I'll definitely tell you that we are taking them to the field trips every month, as we have a planner, right? And in and every planner we have month wise the theme. According to the theme we make them take outside the school to explore the world. सो फील्ड ट्रिप्स बहुत ज़रूरी है. फील्ड ट्रिप्स होगा तो वो लोग का एक्सप्लोरेशन होगा, वो लोग 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे और इतना एक्सप्लोजर होता है बच्चों का तो वो लोग का माइंड का डेवलपमेंट, सीइंग एक्टिविटीज़, सीइंग द आउटसाइड वर्ल्ड, वेर एवर दे गो दे नो द नेम्स. लाइक जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, वी आर टेकिंग देम टू द फायर स्टेशन, राइट. अगर हम बच्चों को फायर स्टेशन लेके जाते हैं तो वो हमारा कम्युनिटी हेल्पर में थीम में आ जाता है. कम्युनिटी हेल्पर की थीम में फायर स्टेशन अगर हम लोग लेके जा रहे हैं बच्चों को तो उसमें वहाँ पे जाके वो लोग फायर स्टेशन की पूरे बस देखेंगे. बस में कौन सा नंबर डायल करना होता है, वो लोग ने कौन से कपड़े पहने होते हैं, वो लोग के अगर फायर होती है कहीं पे भी तो वो लोग उसमें क्या रिएक्ट कर सकते हैं, कौन सा इमोशंस डेवलप हो सकता है. तो दिस आर द पॉइंट्स विच दे डेवलप व्हेन द सिचुएशन हैपन्स, राइट. So this is the main important thing. You can see them the food, the healthy food they are providing to your child. It is optional. अगर कोई स्कूल में होता है, कोई स्कूल में नहीं होता है. In our school we provide food from the school only, right? So you can see according the food, the academic parts, the field trips, exploration to the outside world, the planner, the activities, and the main important I already told you. So these are the topics that you can see from each and every school. वो लोग का प्लेग्राउंड कैसा है, वो लोग का फ्री प्ले एरिया कैसा है, वो लोग कितना टाइम देते हैं बच्चों के राइटिंग स्किल्स पे, मॉर्निंग अफर्मेशंस, प्रेयर्स होती है, एक्शन वर्ड्स होता है, द डेवलपमेंट ऑफ देयर राइटिंग रीडिंग स्किल्स, कितना वो लोग एक्सपोजर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फिडेंस लेवल पे दे रहे हैं, वो भी आपको एक बार देखना चाहिए. So these are the services from the school you can get, right? And the last thing I would tell you, the exploration, the explore the world with your child. Why it is important for your child? Exploration इसलिए important है आपके बच्चों के लिए, as I have already told you in the earlier topic. Exploration promotes the curiosity and discover while limiting the fear of the failure. अगर वो लोग एक्सप्लोर करेंगे बाहर तो वो लोग में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है बच्चों में. अगर वो क्यूरियोसिटी जनरेट होती है तो वो लोग का फेलियर का चांसेस बहुत कम हो जाता है, समझे. एंड एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी एसेंशियल इन एजुकेशन वाइज, स्पेशली फॉर द यंग चिल्ड्रन. जैसे अकॉर्डिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द थीम होती है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लोरेशन यू कैन टेक टू द गार्डन, you can show them the swing, the seesaw, plants, you can give them proper knowledge of the flowers names also. तो वो लोग में जनरेट होती है कि मम्मा ये फ्लावर का नाम क्या है, ये प्लांट्स का नाम क्या है, दिस इज़ कोकोनट ट्री, दिस इज़ पाम ट्री, यू कैन से दिस इज़ द रोजेज़. देर आर डिफरेंट रोजेज़ ऑल्सो इन दैट. लाइक रोजेज़ में बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, यू कैन even repeat the colors. There are also shading roses also, like white and red, only orange, only white, only red, so only yellow. So there are many of the exploration you can give on to your child. बहुत सारे stages भी होते हैं. You can take them to the garden, public areas, the malls. You can take them. Even you can make them read the name. You can repeat the phonics also. Like जैसे कि एग्जाम्पल दे दूँ, MCU, राइट. अगर वो स्कूल का नाम पूरा नहीं बोल सकते, बहुत छोटे बच्चे
तो वो लोग बोर्ड पे भी पढ़ के MCU पढ़ सकते हैं। तो वो लोग का फोनिक्स, जैसे कि M स्टैंड्स फॉर तो ख अ, तो वो लोग रिपीट करेंगे, तो वो लोग ट्राई करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, तो दे कैन स्पीक अकॉर्डिंग टू द फोनिक्स। और हमारे स्कूल में और सारी स्कूल्स में फोनेटिक्स ऑलरेडी क्लासेस भी चल रहे हैं, और यू कैन सी देयर एकेडमिक्स ऑल्सो इंक्लूड फोनेटिक्स, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मेक देम एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड, you can give better platform to your child. So these are the some topics today's agenda I have already cleared you. So अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और आपके बच्चों के रिलेटेड कि मुझे मैम ये प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी वो स्कूल से आ रहा है तो सारी चीज़ फेंक रहा है या कुछ भी, कोई भी एनीथिंग, तो यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली आंसर यू इन दिस सेशन ओनली। और हमारे स्कूल में अभी समर कैंप भी चालू होने वाला है from 25th April to 30th April. So those who are interested, you can just message me on my WhatsApp number. The number you can note down is 6352210699. I can give you all the details in brief, and you can even call me. So summer camp is also important for your child. तो वो स्कूल की एक्टिविटी से रिलेटेड ही होता है, लेकिन थोड़ा एक्टिविटीज़ बेस होता है जिसमें वो लोग को ज़्यादा एक एक्सप्लोरेशन का प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों के साथ, वो लोग के पीयर वन के साथ और फ्रेंड्स के साथ वो लोग मिल के उतना टाइम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकॉज 22nd इज़ आवर लास्ट डे ऑफ द स्कूल, राइट। तो 22nd के बाद हमारा 25th है, और हमारा अभी समर आर्ट भी चल रहा है। एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे वी आर हैविंग समर आर्ट क्लासेस एट आवर स्कूल। सो फॉर दैट डिटेल्स ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप मी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। आई विल बी वेटिंग। मुझे लग रहा है मैंने सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे करेक्टली दे दी है कि वो लोग अभी फॉलो ही करने वाले हैं राइट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या पूछ सकते हो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के। ओके, तो किसी को भी क्वेश्चंस या क्वेरी नहीं है। आई होप एवरीवन वुड फॉलो दिस माय टिप्स टू यू। लाइक हमारा हो गया अफर्मेशन, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हमारा सेकंड टॉपिक था पोस्ट कोविड स्कूल एंड किड्स, राइट। द थर्ड टॉपिक वाज क्वालिटी टाइम टू योर किड्स। द फोर्थ टॉपिक वाज सर्विस फ्रॉम द स्कूल विच यू शुड गेट टू एवरी चाइल्ड, एंड फिफ्थ वाज द एक्सप्लोर the world with your child and why, right? So these are the important topics, and you can even share this video to your friends. Yes, thank you so much for your good comments. Thank you so much, ma'am. So on next Saturday we'll be coming with a more art and craft activity for your child, so you can have a proper, because 14 is Mahavir Jayanti, 15 is also holiday, so for that schedule you can have a mini vacations and you can have a proper quality time with your child. I should suggest you that Saturday को आप बच्चों को बाहर लेके जा सकते हो, पब्लिक एरियाज़ में, गार्डन्स में। you can spend a quality time for half an hour or 1 hour. So thank you so much. Till then, meet you on next Saturday. Bye, happy weekends and stay safe.